गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नाम तो पता ही है आपको, SP सर, फुल फॉर्म भी मालूम है आपको, शिव प्रसाद सर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे in our 12th economics lecture. By the way, today's date is 29th October 2020, and as I told you, it's our 12th economics lecture. And dear students, we have already started our chapter number 5. It is started, that is your balance of payment. So dear students, balance of payment. हाँ यस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, ये चैप्टर कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें अभी तक टोटल 2 वीडियो लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं। इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर आई डिस्कस विथ यू थोरोली द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था मेरा पहला वीडियो लेक्चर में। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कंपोनेंट्स ऑफ BOP, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसमें हम लोगों ने करंट अकाउंट ये कवर किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इफ यू आस्क अबाउट द टॉपिक, सो आई वुड से दैट द टॉपिक इज सेम, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. It is the continuation of the last lecture itself. As I had started the topic components of budget, the first part we had discussed, that is current account. So today we are going to discuss capital account. So it can be written like this: your main topic is components of BOP, that is components of balance of payment. Sorry. And the subtopic in this, which we are going to discuss today, is capital account. Capital account. So, my dear students, it's my suggestion to all of you that such students, those who have not yet watched, जिन लोगों ने अभी तक वो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स उन्होंने नहीं देखा हुआ है, तो इट्स माय सजेशन दैट फर्स्ट यू वॉच द अर्लियर 2 वीडियो लेक्चर्स. यस और नो? ओके. या और एक सजेशन, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट कर दिया और आज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट पार्ट भी ले रहे, कैपिटल अकाउंट्स, मेरा तो अभी तक वो करंट अकाउंट ही क्लियर नहीं है. सो इट्स माय सजेशन दैट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू go through the last 2 video lectures. That is the first video lecture where we discussed the concept of balance of payment, and the second video lecture where I started components of balance of payment, and in that I had covered
The first part, that is current account. So after watching these two last video lectures, then only you will be able to understand this video lectures. Okay, so let's start the discussion of today's topic, that is a subtopic, capital account. My dear students, capital accounts. Capital account records receipts and payments. Capital account records receipts and payments of such transactions which cause impact on assets and liabilities status of a country in relation to the rest of the world. Means what? No doubt पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग रिसीट्स और पेमेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में भी रिसीट्स और पेमेंट ही रिकॉर्ड होगा, इतना तो क्लियर है। बट कौन सा रिसीट्स एंड पेमेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? विच अफेक्ट, सच रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच अफेक्ट द स्टेटस ऑफ liabilities and assets. Means such transactions, foreign transactions, means the transactions between a country and rest of the world, the receipts and payment transactions which affect, which causes status, which affect the status of assets and liabilities. So such transactions are recorded. Such transactions of receipts and payments are recorded under the heading capital account in balance of payment. Dear students, so what is conclusion of discussion? अभी तक जो डिस्कस किया तो लास्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? दैट capital account records receipts and payment of such transactions which cause an impact, which cause an impact means which affect the status of liabilities, assets and liabilities of a country in relation to the rest of the world. Liabilities and assets, or we can say that liabilities or assets of a country in relation to rest of the world are either reduced or they are raised. कहने का मतलब क्या है एकदम सिंपल शब्दों में कि ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस? द ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो अगर वो ट्रांजैक्शंस लायबिलिटीज और एसेट्स का स्टेटस को अफेक्ट कर रहे हैं, अब स्टेटस को अफेक्ट कर रहे मतलब या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा या फिर लायबिलिटीज कम होगा, और या तो एसेट्स बढ़ेगा या फिर एसेट्स कम होगा। सो आइदर liabilities and assets are raised or reduced. So that is recorded under the heading capital account in balance of payment. Dear students, in other words, capital account transactions lead to future claims. Capital account transactions lead to future claims. अब ऐसा क्यों बोला lead to future claims? Because या तो इनका वजह से वो स्टेटस ऑफ व्हाट, स्टेटस ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स वो या तो रेज होगा या फिर रिड्यूस होगा। कहने का मतलब क्या है? या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा या फिर लायबिलिटीज कम होगा, या फिर एसेट्स बढ़ेगा या फिर एसेट्स कम होगा। गॉट इट? सभी को बराबर समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबडी अटेंड हियर प्लीज, एवरीबडी वंस अगेन I would like to draw your attention. ये जो थोड़ा सा ड्राउजी फेस बना के बैठे हैं, यस, सुस्त मुर्गे, ऐसा ड्राउजी फेस नहीं चाहिए मुझे। अटेंड प्लीज एवरीबडी। As I told you earlier,
Yes, as I told you earlier that in the last video lecture I had started components of balance of payment, and I had covered over there current account, and today's topic is also same. It is continuation of the last lecture itself, that is components of balance of payment, but today we are discussing the sub-topic capital account, and over here मीनिंग मैं बता चुका हूँ पहले ही, मीनिंग सिखाया मैंने, आपको बोल दिया मैंने। अब जिसका ध्यान था समझा, जिसका नहीं ध्यान था वो अभी भी सोचता होगा अरे यार शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। एनीवे, अटेंड हियर प्लीज वंस अगेन। कैपिटल अकाउंट records receipts and payment transactions. Capital account records receipts and payment of such transactions which cause an impact on the status of liabilities or assets. ऐसे transactions, ऐसे foreign transactions means ऐसे transactions जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शंस का वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस को अफेक्ट हो रहा है। अब अफेक्ट हो रहा है मतलब या तो लायबिलिटीज और एसेट्स ये रेज होगा या फिर रिड्यूस होगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंडर द हेडिंग कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। इन अदर वर्ड्स, क्या बोला? इन अदर वर्ड्स, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। गॉट इट एवरीबॉडी? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेटा ये मीनिंग तो क्लियर हो गया। किसका मीनिंग? द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा का डिस्कशन है। ये ज़्यादा का डिस्कशन वाई रिक्वायर्ड? बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। कंफ्यूजन किस में? वो कैपिटल एसेट्स को लेकर, कैपिटल एसेट्स को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा अब ये ज़्यादा का बात करते हैं। दैट कंफ्यूजन इज समटाइम्स रेज्ड with regard to the export and import of capital goods. Capital goods, my dear students, export and import of capital goods, अगर किसी ने पूछा ऐसे डायरेक्टली कि जरा बताओ that export and import of capital goods will it be recorded under the heading of capital accounts or not? So answer is no, certainly no, एकदम क्लियर कट नो। कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट ये हेडिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज मर्केंडाइज, इट इज अ विजिबल ट्रेड एंड इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट्स, नॉट द अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, so what is conclusion? Conclusion is that the transactions related to the export and import of capital goods will not be recorded under the heading of capital account of BOP. They are merchandise, means they are visible trade, and that's why they will be recorded under current accounts. Got it everybody? No doubt? Okay, thank you very much beta. Now let's discuss the components of capital account. So meaning is clear, meaning of capital account is clear. Now let's discuss components of capital accounts, components of capital account in BOP, capital account. So dear students, components में जब बात करते हैं तो हम लोग there are two principal components
Two principal means two main components of the capital account. They are borrowings and foreign investments. कौन सा बोला? Borrowings. Components में borrowings. By the way, ये किसका components है? ये capital account का components है. Borrowings. Borrowings and foreign investments. Borrowings and foreign investments. So these are the principal components, that is main components of capital account of BOP, that is balance of payment. Got it this much? ये main components है, principal components है. Now the borrowings are further classified as, यहाँ ध्यान देना बच्चों, borrowings are further classified as external commercial borrowings and external assistance. क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान देना बराबर, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आधा अधूरा सुनेंगे तो कोई बोलेगा क्या बड़बड़ किया, कुछ समझा नहीं. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो recap. First we discuss capital account, the concept of capital accounts. Now we have started our discussion, that is components of capital account. I told you that principal components, main components of capital account is borrowings and foreign investments. अब ये आगे हम लोग बात करें borrowings का. The borrowings are further classified और उसमें split हो रहा है कौन सा the external commercial borrowings and external assistance. Sorry, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल के बता रहा हूँ आपको. The borrowings are further classified as external commercial borrowings and external assistance. देखो दोनों में फर्क है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस, क्या फर्क है देखते हैं. द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट while external commercial borrowings is available at the market rate. ये जो बोला commercial borrowings is available at market rate of interest in international money market. लेकिन अगर ये जो एक्सटर्नल असिस्टेंस का बात करेंगे, जो सेकेंड स्प्लिट है ऑफ बोरोइंग्स, तो बेटा ये एक्सटर्नल असिस्टेंस दैट वहाँ पे रेट को मैनेज किया जा सकता है. कौन सा रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इट कैन बी मैनेज्ड बिकॉज वो असिस्टेंस है. वो दो देश की बात है तो वो लोग आपस में समझ के भाईचारा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रेट कैन बी डिसाइडेड. तो ये बेसिक का डिफरेंस है बिटवीन दैट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस. सो व्हाट इज कंक्लूजन? एक्सटर्नल असिस्टेंस इज available at concessional rate of interest. Borrowings from the rest of the world raises our liability. अब ये तो सही बात है. यही चीज हमने वो मीनिंग में बताया पहले. किसका मीनिंग? मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द लायबिलिटीज एंड एसेट्स. ओके, ये भूलना मत. एनीवे, हम लोग बोरोइंग्स का बात कर रहे हैं. सो नो डाउट बोरोइंग रेजेस द लायबिलिटीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेस आवर लायबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है? बट
इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। आई होप आपका ध्यान है बराबर। पहले मैंने बोला आपको दैट बोरोइंग्स, नो डाउट लायबिलिटी रेज हो रहा है, इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्रेडिट आइटम क्यों, ऐसा क्या रीजन है? द रीजन इज दिस, ऑल रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। ये एकदम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बात हुआ था जहां पर डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ बीओपी। वहां पे बात किया था कि जितना भी रिसीट्स है वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है और जितना भी पेमेंट्स है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऑल द रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। सो वो भूलना नहीं है अपने को। 10 कंक्लूजन, 10 बोरोइंग्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओ भाई थोड़ा ध्यान दो, अब ये दूसरा पार्ट का बात कर रहा हूं। 10 बोरोइंग्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेंडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले वो रिसीट का बात किया था, हम बोरो कर रहे थे, ध्यान है बराबर। अब ये किसका है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेंडिंग, लेंडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। इजी, एकदम इजी इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई मेरे। हमने बोरो किया मतलब रिसीट हुआ, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे बोरो कर रहा है, मतलब लेंडिंग, हमारा हमने लेंड किया उनको, तो जाहिर सी बात है वो एज अ डेबिट आइटम रिकॉर्ड होगा, हो ना? ध्यान है ना आपका? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, इट विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट as it causes flow of foreign exchange from our country to the rest of the world। हमने उनको lend किया तो our foreign exchange is flowing out, that's why it will be recorded as debit items। So dear students, borrowings clear हो गया। Now we talk about foreign investment। ये next one, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट दो है उसमें, एक बोरोइंग्स जो अभी बात किया, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से बोरोइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा? वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। सेम उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी, foreign investment is also classified as, इसमें भी further classification, it is also further classified as portfolio investment, port P-O-R-T, portfolio investment, and जो आप हमेशा सुनते हैं FDI, that is foreign direct investment। आई होप आपने ध्यान से सुना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फॉर, यहां पर लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं तो ध्यान देना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड एज पोर्टफोलियो, P-O-R-T, फोलियो, F-O-L-I-O, फोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? FDI। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना। पोर्टफोलियो बेसिकली रिफर्स टू व्हाट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इट इज इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन डोमेस्टिक कंट्रीज। कहने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज का शेयर्स, डोमेस्टिक कंपनीज का बॉन्ड्स, अगर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज, उन लोगों ने परचेज किया, तो परचेज किया इन द सेंस हमारे यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्ट किस में किया, कैसे किया, बाय परचेसिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, सो इट विल बी कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या, एफडीआई मतलब डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का कोई तो भी कंपनी वो आके यहाँ पे अपना कंपनी सेटअप कर रहा है। कंपनी सेटअप मीन्स फॉरेन कंपनीज दे आर सेटिंग अप इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दे विल ओन एन एंटरप्राइजेस, दे विल ओन अ कंपनी इन इंडिया, बट इट इज फॉरेन कंपनी। सो एफडीआई रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। सो फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट का बात कर सकते हैं हम लोग, वॉलमार्ट ये क्या है, एफडीआई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अटेंड हियर प्लीज एवरीबॉडी, रिकैप अभी तक क्या डिस्कस हमने किया। Dear students, as I told you that it is a continuation of the last lecture itself. In the last lecture, I had started components of BOP. Over there, I had discussed with you the current accounts, and today the next part, that is a capital account, is being discussed. First we discuss the meaning and the transactions which are recorded in the capital accounts, and later on we discuss about the components of capital accounts, components, borrowings and foreign investments. So I hope that अभी तक का डिस्कशन आपको बराबर समझ में आया है। Dear students, इसके कुछ अदर कंपोनेंट्स भी है। ये तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स था, मैंने बताया मेन कंपोनेंट्स कौन सा, ये बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कुछ अदर कंपोनेंट्स भी है, वो अदर कंपोनेंट्स में 2-3 नाम और हम लोग बता सकते हैं, विच आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो उसमें पहला नाम हम लोग लिखते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स। क्या बोला मैंने, NRI डिपॉजिट्स, NRI डिपॉजिट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी कैपिटल अकाउंट्स का ही कंपोनेंट है, लेकिन ये अदर कंपोनेंट्स में इसका काउंटिंग हम लोग करते हैं, NRI डिपॉजिट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होने का चांसेस है। कैसे कंफ्यूजन, अब NRI का फुल फॉर्म आपको मालूम है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, मतलब अपने यहाँ का बंदा है लेकिन यहाँ पे रहता नहीं है, वो विदेश में रहता है ना, उसको बोलते हैं NRI। तो अब उसने अगर अपना फैमिली को पैसा भेजा, कहने का मतलब क्या है, वो NRI और अपना फैमिली को वो मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं काउंट करने वाले NRI डिपॉजिट्स में। NRI डिपॉजिट्स में हम उसको ही काउंट करेंगे जो हमारा इकोनॉमी में आ रहा है, ना कि उसका फैमिली को। मीन्स व्हाट, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मीन्स व्हाट, वो NRI डिपॉजिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज NRI deposits. Only such NRI deposits are to be considered, जैसे बोला वो एज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, तो किसको कंसिडर करेंगे, विच आर मेड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। वो अपना फैमिली को ट्रांसफर कर रहा है, उसको नहीं। सो ओनली डिपॉजिट्स हेल्ड बाय NRI इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके।
अदर कंपोनेंट्स में और एक नाम ले सकते हैं हम लोग बैंकिंग कैपिटल्स, या फिर ये बैंकिंग कैपिटल बट अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। ओके, और थर्ड वन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे नाम बता सकते हैं एज अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स। तो इस तरह से मैंने 3 अलग अलग आपको बताए अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट वन हमने बात किया एनआरआई डिपॉजिट्स, और सेकेंड वन बात किया बैंकिंग कैपिटल्स अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स, और लास्ट वन अभी डिस्कस किया, आपको बताया मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या है आपको मालूम है, यस और नो? लास्ट ईयर आपने सीखा हुआ था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैपिटल, इट इज ऑल्सो considered as the part of the capital accounts. So dear students, over here we finish the capital account as a component of balance of payment. I hope वीडियो लेक्चर देखने के टाइम पर सारी बातें आपने नोट डाउन की होंगी। अगर नहीं किया है वीडियो फिर से देखिए और स्टेप बाय स्टेप एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आल्सो नोट डाउन इट। आई कॉल इट रफ नोट्स। फिर इसका ही बेस पे आपको फेयर नोट्स भी बनाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। एंड चलते चलते आई वुड लाइक टू से दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड share my video lectures. Thank you very much for kind cooperation. Thanks a lot.